were discussing in the last lecture about tides, we had done some definitions related to the tide. First, we saw the reason for tides, what are spring tide, what are neap tides, and then we saw what is LAT, lowest astronomical tide. Then we saw what is chart datum, and then the next topic after this, I think last lecture we did up to chart datum, correct beta? Yes, sir. Yeah, right. So today we will proceed ahead. We will see some more definitions. What are drying heights? We will see that. What is MHWS, mean high water springs, mean low water springs, and what is mean sea level, some of the definitions which were pending, highest astronomical tide. So we will see all these things, and once we are done with them, then the next thing is to familiarize ourselves with the tide tables. So let's jump into the presentation video and go ahead. This was the first thing which we did, beta, the cause of tide, gravitational pull of the moon combined with the pull of the sun gives us tides, spring tide and neap tide. When sun and moon forces are combined together, it generates, say, a spring tide, and whenever they are against each other, it generates a neap tide. And then we saw lowest astronomical tide, LAT, and we saw the chart datum. So this is what we had done. So I'm going to just repeat the chart datum once again, and then we are going to proceed further. From where the depths displayed on a nautical chart are measured, height of tide is measured, and the drying heights are measured. You can see in this diagram, here we have the chart datum, which is same as LAT, from where the depth of the seabed is measured and is the charted depth. Beta, is the audio working fine, loud and clear? Yes, sir. Loud and clear, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Where the height of tide up to the current water level is measured, and so are the drying heights. We shall learn little more about these in a while from now. A chart datum is generally derived from some phase of the tide. Common chart datums are lowest astronomical tide, that is LAT, and mean lower low water, mean lower low water. In non-tidal areas like Baltic Sea, mean sea level is used as the chart datum in the absence of tides. A chart datum is a vertical datum, so the measurements with respect to chart datum are done in the vertical plane. Let's depict these few terms that we have learned onto this diagram. This is the current sea level. So where this is the sea surface. And obviously the depth of the seabed below the surface at any point at that time shall be the observed depth at that point. Then this represents the chart datum, which we have said usually is the LAT. Else it could also be mean lower low water, MLLW. In the absence of tides, it could be the mean sea level. Now from the chart data, what we measure are the charted depths. So the depth of the seabed below this chart datum is the charted depth. You can see it here. And the height of the sea surface above the chart datum is the tide, height of tide at that particular point of time. So all okay up to here, beta? Yes, sir. Okay, this is what we discussed in the last session. So let's proceed ahead. Drying heights. There could be some rocks, seabed features, which may cover and uncover during rise and fall of tide. The height of such seabed features or rocks
above the chart datum. So the reference is the chart datum. So above the chart datum is known as the drying height. You can see in this diagram, we shall see it in a bigger diagram in a while from now. It is the vertical distance of the seabed that is exposed by tide above the sea water level at the lowest astronomical tide or above the chart datum. On Admiralty charts, a drying height is distinguished from depth. So it is marked like depth in meters and decimeters, but it is distinguished from depth by being underlined, as you can see here. This 2.8 meters for Koningberg Rock, which is underlined here, is not the depth out here at Koningberg Rock. In fact, this is the drying height of the Koningberg Rock. So drying height of the Koningberg Rock is 2.8 meters. Any doubts up to here, beta? सर मतलब ये जितना उसका हाइट है एलएटी के ऊपर वो है. That means बेटा ये जो पर्टिकुलर रॉक है, जैसे आप देख रहे हो कॉनिनबर्ग रॉक, फ्रॉम द चार्ट डेटम दिस इज एट ए हाइट ऑफ 2.8 मीटर्स. ये चार्ट डेटम के ऊपर है. और कितना ऊपर है? 2.8 मीटर्स चार्ट डेटम के ऊपर है. ओके सर. Okay. Now tell me one thing. If the height of tide is 1 meter, will you be able to see this rock? Yes, sir. Very good. So you will be able to see this rock. And if the height of tide is 3 meters? नो सर, फिर तो 0.2 मीटर नीचे रहेगा. That's right, beta. That's right. So this is the meaning of the drying height. Let's see it in a bigger diagram now. सर इसके नीचे Let's ये continue with this. Go ahead, beta. सर उसी के जस्ट नीचे ये 47 मेंशन है ना. व्हाट इज दैट? That 47 could be the depth of water here, beta. ओके सर. Okay, there is no underlining here. So this 47 is the depth at this particular location. ओके सर. Drying height of the Koningberg Rock. So drying height of the Koningberg Rock is 2.8 meters. Let's continue with this diagram wherein we had already marked some levels and terms which we had learned earlier. And on the same diagram, now we shall insert the drying height. So this level of the chart datum or the LAT is also the charted low water line. This feature of the seabed is covered and uncovered because of rise and fall of tide. So the height of this feature above the chart datum is what is its drying height. Mean high water spring and mean low water spring. The height of mean high water spring is the average throughout the year of two successive high waters during those periods of 24 hours when the range of the tide is at its greatest. That means when you have spring tide, the height of the two successive high waters is taken for a period of 24 hours, and this is averaged for the full year, and that is what gives us mean high water spring. You can see in this diagram, here is the mean high water spring level. Likewise, the height of mean low water spring is the average height obtained by the two successive low waters during those 24 hours when the range of the tide is at its greatest. So for both the range is greatest. In one case, you take the height of the high water. In the other case, you take the height of the low water. In this diagram, here is mean low water spring. We shall see all this in the bigger diagram. We shall insert this in the diagram that we are continuing with. Difference in the height of mean high water spring and mean low water spring is what is called as the spring range of tide. Mean high water spring is the charted high water level and taken as chart datum or reference for charted height or elevation of objects which do not submerge in water, like the lighthouses. So this mean high water spring level is also the charted high water level
as far as charts are concerned, and the height of the objects which do not submerge in water like lighthouse, they are measured with respect to this charted high water level, which is same as the mean high water spring. Height of mean high water spring and mean low water spring above chart datum is available both in the tide table, so it can be obtained from tide tables, as well as it can also be obtained from a table of tides which is contained on the navigational charts. Okay, so just go through these points one by one, beta. Let me know the doubts coming. सर ये नंबर 4 एंड नंबर 5 पॉइंट सर बता दें. ओके, इसमें स्पेसिफिक क्या डाउट आ रहा है बेटा नंबर 4 में? सर ये इसमें लिखा हुआ है ना, मीन हाई वाटर स्प्रिंग इज चार्टेड हाई वाटर लेवल एंड टेकन एज द डेटम रेफरेंस फॉर चार्टेड हाइट और एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सर ऑब्जेक्ट से लेंगे सर इसको? नहीं बेटा, मीन हाई वाटर स्प्रिंग किसी ऑब्जेक्ट से नहीं मिलेगा हमें. मीन हाई वाटर स्प्रिंग तो जो आप पॉइंट नंबर 1 में देख रहे हो इस ऑब्जर्वेशन से मिलेगा. ओके, हाँ सर. इसका क्या मतलब है? लेट अस से वी हैव ए पर्टिकुलर एरिया एंड उस एरिया में हमें एक लाइट हाउस मिलता है. लेट्स से 5048 चार्ट हमने ओपन किया और हमें एक लाइट हाउस दिखा. ठीक है एंड सर. उस लाइट हाउस की हमें हाइट दे रखी है. एवरी लाइट हाउस हाइट इज गिवन ऑन द चार्ट. हमने ज्योग्राफिकल रेंज निकालने के लिए इसे यूज किया था, राइट? यस सर. नाउ दैट पर्टिकुलर हाइट is measured from what level? Is it measured from the lowest astronomical tide, from the chart datum, or from anything else? कहाँ से हम वो हाइट को मेजर करते हैं? Because depending upon हम कहाँ से उसे मेजर करेंगे, हाइट तो चेंज होती रहेगी. यस सर. सो उस हाइट को मेजर करने का जो लेवल है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स है. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग से मेजर करता है. दैट्स राइट, दैट्स राइट. मीन हाई वाटर स्प्रिंग का जो लेवल है उससे हमारा ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, दैट इज द चार्टेड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो सर ये उस ऑब्जेक्ट की मतलब बॉटम से अपर मोस्ट पार्ट तक का हाइट नहीं होती, मीन हाई वाटर से नो लेते हैं? बेटा, नो नो नो. जैसे आप ये देख रहे हो, ये लाइट हाउस हमें दिख रहा है. यस सर. लाइट हाउस का जो स्ट्रक्चर है उसकी हाइट तो बहुत कम है. ओके. सो दिस इज नॉट द चार्टेड हाइट. द चार्टेड हाइट इज top of the lighthouse, how much high above the mean high water spring it is. ओके सर. Is it clear now beta? यस सर. Okay. और क्या डाउट है बेटा? सर ये क्लियर नहीं हुआ सर, मीन हाई वाटर स्प्रिंग और मीन लो वाटर स्प्रिंग सर. यस सर. सर एक और बता दीजिए. क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार डायग्राम से समझाइए सर तो क्लियर होगा सर. ये थोड़ा हौच पौच हो गया, जूम भी किया हुआ सर. थोड़ा एक एक करके बता दीजिए दोबारा. ओके बेटा, यू मीन टू से पॉइंट नंबर 1 और 2 में डाउट है जिसमें हाँ सर. डेफिनेशन दे रखी है, राइट? जी. यस नो, सर. डाउट इसमें है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे मीन हाई वाटर स्प्रिंग का लेवल हमें कैसे मिलेगा एक्चुअली अगर निकालना हो तो, राइट? ठीक है बेटा, अब इसके लिए अज्यूम करो अपने माइंड में जिस भी जगह पे हमें मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स का लेवल निकालना है हम वहां पे चले गए, राइट? हमने वहां जाके जो भी हाइट ऑफ टाइड है उसे मेजर करना शुरू कर दिया. चार्ट डेटम के बारे में तो हमें पता है, हमने चार्ट डेटम निकाला भी हुआ है. हमने अब उस चार्ट डेटम के रेफरेंस में हाइट ऑफ टाइड हर एक घंटे में लिखना शुरू कर दिया अपनी नोटबुक में. लिख सकते हैं? यस सर. सुबह 9 बजे हाइट ऑफ टाइड थी 1 मीटर, 10 बजे हाइट ऑफ टाइड हो गई 1.5 है, शाम के 2 बजे या 3 बजे हाइट ऑफ टाइड हो गई 4.5 मीटर्स. ऐसे हम लिखते चले जा सकते हैं बेटा. यस सर. यस सर. ओके, आप लिखते चले गए.
पूरे एक महीने के लिए आपने इसको लिख लिया। हाई वाटर की वैल्यू भी आपके पास आ गई, दिन में हाई वाटर कब हुआ, लो वाटर कब हुआ, ये आपके पास आना शुरू हो गया, राइट। एक दिन में नॉर्मल लोकेशंस पे आपको 2 हाई वाटर मिलेंगे, 2 लो वाटर मिलेंगे, राइट। ये सब आपने नोट कर लिए फॉर 1 फुल मंथ। सर इसमें क्वेश्चन ये था सर कि जो मीन लो वाटर स्प्रिंग होती है सर वो LAT से भी नीचे चली जाती है क्या सर, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से? नहीं बेटा, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से वो ऊपर रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। सर कि कोई भी लो टाइड जो होगी वो चार्ट डेटम से ऊपर ही होगी, करेक्ट सर? Yes, 99% of the cases it will be above the chart datum. ओके सर, वो 1% कब नहीं होगा सर? Okay, that happens in case of special circumstances, meteorological conditions, कोई सुनामी आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, हैवी स्वेल, हैवी विंड्स, ऐसी काइंड का कोई फिनोमेना आ जाए, उस केस में इट इज पॉसिबल कि जो एक्चुअल लेवल है वो चार्ट डेटम से भी नीचे चला जाए। Sir, so suppose if we have to pass underneath a bridge, सर तो उसमें सर हम लोग कौन सी टाइड को रेफरेंस लेके सर क्रॉस करेंगे सर, क्योंकि उसमें हम लोग को ईबिंग टाइड की जरूरत होगी जिससे कि हमारा शिप थोड़ा सा डाउन हो जाए और नो ब्रिज को प्रॉब्लम क्रॉस बेटा, कर सके। अभी देखेंगे आगे, ब्रिज पे अभी चलेंगे, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें ब्रिज क्रॉस करना हो तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा कि उसमें उतनी क्लियरेंस है निकलने के लिए या नहीं है। वी विल सी दैट। सर अभी आपने बोला था कि 2 वैल्यू मिलेंगी हमको, लो टाइड की 2 वैल्यू मिलेंगी, हाई टाइड की, वो 2 क्यों मिलेंगे सर, ज्यादा मिलेंगे ना सर? बेटा एक दिन में 2 बोल रहा था मैं। सर समझा नहीं इस बात को, एक दिन में 2 मतलब? स्लाइड दिखाई दे रही है जो हमने अभी डिस्कस की थी, राइट साइड में मैंने टाइड टेबल ओपन किया है एक पर्टिकुलर प्लेस का, जस्ट टू शो यू कि ये मीन हाई वाटर स्प्रिंग कैसे निकाला जाता है। अब बेटा आप देखोगे जनवरी 1 को ये जो लोकेशन हमने खोली है 0303 पे एक लो टाइड था, 1.9 मीटर की हाइट थी, राइट। राइट सर। 0813 पे हाई टाइड था, 5.7 मीटर की हाइट हो गई, राइट। यस सर। फिर इसके बाद 1538 पे ये 1.7 हो गया, 2051 पे ये 5.6 हो गया, राइट बेटा। दिस इज हाउ दैट लेवल गोज अप एंड डाउन एट ए प्लेस, करेक्ट। यस सर, यस सर। अब हमने क्या किया, हमने ये पूरे महीने के लिए, इनफैक्ट पूरे साल के लिए ये पूरा डाटा निकाल लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अप टू दिसंबर, ये सारी हाइट्स एक प्लेस की मेरे पास आ गई, ओके। ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने हाई वाटर की वैल्यू 5.7 और लो वाटर की वैल्यू 1.9, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। इट विल बी 5.7 माइनस 1.9, करेक्ट। यस सर। ये जो डिफरेंस आता है इसे बोला जाता है रेंज ऑफ टाइड, राइट बेटा, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ टाइड। अब मेरे पास ये एक रेंज ऑफ टाइड आ गई 1 जनवरी की। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया सर। बेटा नेटवर्क संभाल लो। सॉरी सर। ओके सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कहां तक लूज किया तुमने बेटा, कहां तक थे हमारे साथ? भी एक्सप्लेन करते रेंज ऑफ टाइड सर। ओके बेटा, ये हाई वाटर दिख रहा है 813 पे और लो वाटर दिख रहा है 0303 पे। यस सर। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगी रेंज ऑफ टाइड, ओके। यस सर। ठीक है बेटा, अब यही रेंज ऑफ टाइड मैंने सब हाइट्स के लिए निकाल ली, 1.9 5.7 के लिए निकाल ली, 1.7 5.6 के लिए निकाल ली, अगले दिन 1.8 5.8 फिर निकाल ली, 1.6 5.8 निकाल ली, बहुत सारी रेंजेस आ जाएंगी हमारे पास। यस सर। हमने ये देखना है कि पूरे जनवरी मंथ में सबसे ज्यादा रेंज कब आई है, पता चल जाएगा हमें। यस सर।
लेट अस से सबसे ज्यादा रेंज जो हमें मिली, एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सबसे ज्यादा रेंज हमें मिली यहां पे, ओके, 5 मीटर की रेंज मिल गई हमें, ये हमें सबसे ज्यादा रेंज मिली, ओके। इसी तरह से हमने फरवरी मंथ में भी निकाल लिया कि सबसे ज्यादा रेंज कब आई, मार्च में भी निकाल लिया सबसे ज्यादा रेंज कब आई। ऐसे हम निकालते चले गए पूरे साल में, जो भी सबसे ज्यादा रेंजेस हमें मिली उनको हमने नोट कर लिया, ओके। अब वो जो रेंजेस आई हैं बेटा, उन रेंजेस में जो हाई वाटर की वैल्यू आपको मिली है, जैसे पहली रेंज जो हमने ली थी उसमें हाई वाटर की वैल्यू आई थी 6.1, दूसरी रेंज हमने ली हाई वाटर की वैल्यू आई 6.4, तीसरी रेंज ली उसमें हाई वाटर की वैल्यू आई 6.0। ये सारे हाई वाटर्स का मीन निकाल लिया तो क्या मिलेगा हमें, Yes, sir. मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स। Yes, sir, अब समझ में आ गया। अब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir, अब क्लियर हो गया। यस अब सर। डेफिनेशन को दोबारा से देखो, हाइट ऑफ द मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स इज द एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मीन, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, ऑफ 2 सक्सेसिव हाई वाटर्स ड्यूरिंग दोज पीरियड ऑफ 24 hours when the range of the tide is at greatest। सो सबसे पहले हमने वो दिन निकाले जहां पे रेंज ऑफ टाइड ग्रेटेस्ट थी, फिर ग्रेटेस्ट रेंज के पास वाले 2 टाइड्स को लेते हैं, मैंने अभी एग्जांपल में आपको एक ही बताया बट 2 टाइड्स को लेते हैं, जैसे ये हमने एक 6.1 लिया, दूसरा वाला 6.2, इनके बीच में हमें सबसे ज्यादा रेंज मिली, इन दोनों को लेते हैं, ये 6.4 है, इसके बाद ये 6.5 है, इन दोनों को लेते हैं और इनका मीन निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स। Is it getting clear in the mind now? Yes, sir. और अगर यही काम लो वाटर के साथ कर लिया जाए, जो हमने हाई वाटर के साथ किया, सबसे ज्यादा रेंज में जो लो वाटर हमें मिले, जैसे वहां पे मिला 1.4, अगला वाला 1.2, फिर नेक्स्ट में मिला 1.0, अगला वाला 0.8, अगर इन सब का मीन निकाल लिया जाए तो आ जाएगा मीन लो वाटर स्प्रिंग्स। तो सर ये एनी 24 आवर्स में सबसे ज्यादा लो जो वाटर लेवल जाएगा उसमें निकालेंगे? एनी 24 में नहीं बेटा। ओके, एक दिन में? एक दिन में भी नहीं, आपको ये देखना है, देखो टाइड की जो रेंज है ना बेटा वो चेंज होती रहेगी, जैसे ये पहली रेंज आपने निकाली 5.7, 1.9, कुछ और रेंज होगी, फिर नेक्स्ट रेंज आपने निकाली तो रेंज बदल जाएगी, फिर रेंज और हो जाएगी, अगले वाले में देखोगे तो रेंज बदल जाएगी। सबसे पहले तो रेंजेस निकालो आप। ठीक है सर। अब ये सारी रेंजेस जो आपने निकाली, जब इनको आप अपनी नोटबुक में डालोगे ना तो ये रेंजेस का एक ग्राफ बन जाएगा, रेंज बढ़ेगी, यहाँ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर बढ़ेगी, फिर नीचे आएगी, ओके, रेंज विल गो लाइक दिस। अब जहां पे रेंज सबसे ज्यादा है वहां वाले 2 हाई वाटर्स की वैल्यू को आपने पिक करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? Yes, sir. इन वैल्यूज को जब आप पिक कर लोगे और इनका मीन निकालोगे तो मिलेगा मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स। 2 सक्सेसिव हाई वाटर्स का निकालेंगे ना? दैट्स राइट बेटा, देखो मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं ना, एक हाई वाटर इधर और एक हाई वाटर इधर, ओके, इसको बोलते हैं मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स। स्प्रिंग का मतलब है जहां पे टाइड की रेंज बहुत ज्यादा हो। और इसी के साथ अभी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट डेफिनेशन आल्सो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सर मीन ये हाई सर ये पहला पीक है जो जनवरी मंथ का है जैसे, और ये नेक्स्ट पीक है वो फरवरी मंथ का है, राइट बेटा, ऐसा है ना सर? ओके सर। एक्चुअली एक मंथ में ना 2 पीक आते हैं, अच्छा, एक ओके मंथ सर। में आपको 2 पीक्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये जनवरी के दोनों पिक्स हैं? दैट्स राइट बेटा, इसी तरह फरवरी में भी 2 मिलेंगे, मार्च में भी 2 मिलेंगे, ऐसे। ओके सर, फिर इन दोनों से एक वैल्यू मिल गई, फिर फरवरी की दो वैल्यू से एक वैल्यू मिल गई, फिर उनका भी मीन निकालना है क्या सर? फरवरी में, जनवरी में आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी, फरवरी में भी 4 मिलेंगी, फिर उन सब का मीन निकालना है हमने। ओके सर। ओके, सर जनवरी में तो 2 ही मिल रही है ना?
जनवरी मंथ में बेटा 2 बार आपकी रेंज मैक्सिमम जाएगी, 2 बार। वो ओके सर। ओके, अब आपके माइंड में डाउट आएगा सर जनवरी मंथ में 2 बार क्यों रेंज ऊपर जा रही है, 1 बार क्यों नहीं गई या 3 बार क्यों नहीं गई, राइट? आएगा ना, डाउट आएगा ना माइंड में कि ये जनवरी में 2 बार क्यों बोल रहे हो आप, जनवरी में 1 बार क्यों नहीं गई, 3 बार भी जा Yes, sir. सकती, 3 बार क्यों नहीं गई, करेक्ट? सर क्योंकि सर न्यू मून और फुल मून के टाइम पे ही हो गए सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस डाउट को भी क्लियर करते हैं बेटा। लेट मी गो बैक। ये देखो, हम चले गए थोड़ा सा पीछे। ये देखो बेटा, हमने देखा था कि मून जब एक पूरा चक्कर लगाता है अर्थ के अराउंड तो 2 बार स्प्रिंग टाइड आता है ना। एक बार जब सन और मून सेम डायरेक्शन में होते हैं, स्प्रिंग टाइड, और एक बार जब सन और मून ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, स्प्रिंग टाइड। ये जो स्प्रिंग टाइड है, ये ऐसा टाइड है जहां पे टाइड की रेंज हाईएस्ट होती है। मतलब जो पीक हमने यहां पे बनाई है, दिस रिप्रेजेंट्स ए स्प्रिंग टाइड, करेक्ट? और ये मून का जो Yes, एक sir. चक्कर है कितने दिन में कंप्लीट होता है? 28 28 डेज में, अप्रोक्सीमेटली ये मंथ यू कैन से 28 डेज में कंप्लीट होता है। तो 28 डेज में कितनी स्प्रिंग टाइड आएंगी? कितनी स्प्रिंग टाइड आएंगी? 2, sir. 2 स्प्रिंग टाइड आएंगी। सो इसीलिए हमें 28 डेज के अंदर ये 2 पीक्स मिलेंगी। बात बन रही है बेटा कुछ कुछ? Yes, sir. बन रही है कुछ। वेरी गुड बेटा। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो ये टॉपिक इतना सिंपल नहीं जितना ऊपर से देखने में लगता है। सो एनीवे, गुड। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। और क्या डाउट आ रहा है बेटा, बताओ। सर पी की ये सर होगी जो अपन जो हाइट मेजर कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लैंड पे है, उससे सर चार्ट एटम्स ही कर लेते हैं ना सर। काम सी में तो ज्यादा बेटर होता, मोर एक्यूरेट होता। अपन मीन हाई वाटर उससे क्यों ले रहे हैं सर उसको? ओके, अब बेटा ये कुछ बात ऐसी है। पहला रीजन तो इसका ये है कि जिन्होंने सबसे पहले चार्ट बनाने शुरू किए उन्होंने रेफरेंस मीन हाई वाटर स्प्रिंग से ले ली। अब एक बार उन्होंने ले ली तो ले ली। जैसे चार्ट में हम लैंड मासेस को येलो कलर से दिखाते हैं, अब कोई बोल सकता था कि भाई ठीक है ब्राउन सर। कलर से दिखाना चाहिए था, मिट्टी तो ब्राउन होती है। तो ठीक है। अब कहानी ये है कि ठीक जिसने है येलो सर। ले लिया उसने ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, राइट बेटा? ओके सर। राइट। जी अब सर। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। अगर ना भी समझ में आए तो भी चलेगा, ये पहला पॉइंट कवर्स अप एवरीथिंग। दूसरी चीज ये है बेटा, नॉर्मल सी लेवल जो है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग से कम लेवल पे रहेगा। नॉर्मल किसी भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि मीन हाई वाटर स्प्रिंग से नीचे के लेवल पे रहेगा नॉर्मल सी लेवल। इसका हाँ मतलब सर, है ऑफ कोर्स सर। कि जितनी चार्टेड हाइट आपको चार्ट पे दिखी मिलेगी, एक्चुअल हाइट उससे ज्यादा ही मिलेगी लाइट हाउस की, उससे कम मिलने के चांसेस बहुत कम है, हाँ राइट? सर। इन अदर वर्ड्स, किसी भी लाइट हाउस की मिनिमम पॉसिबल हाइट जो हो सकती है वो हमें चार्ट पे दे दी है उन्होंने, उससे ज्यादा कम हाइट नहीं होगी। तो इट इज सेफ फॉर अस। अगर कोई हमें बोल रहा है कि 50 मीटर हाइट है इस लाइट हाउस की, तो आपको नॉर्मल केसेस में 50 से ज्यादा ही मिलेगी और आपको उसे देखना आसान होगा। ओके, अगर हम चार्ट डेटम ले लेते तो इनिशियल हाइट, चार्टेड हाइट तो बहुत ज्यादा आ जाती। चार्टेड हाइट आ जाती वहां पे 50 मीटर। अब आपका लेवल यस जो सर। है वो तो चार्ट डेटम से ऊपर है, इसका मतलब लाइट हाउस की हाइट कम हो जाएगी। अब आपको लाइट हाउस दिखाई नहीं हाँ दे सर। रहा, आप चेक कर रहे हो कि भाई चार्ट पे 50 मीटर लिख रखा था, मुझे दिखना चाहिए था, ये दिख ही नहीं रहा। ओके, जी सर। सो ये चीज नहीं हो इसके लिए उन्होंने मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स का लेवल लिया है। ये भी समझ में आया बेटा? हाँ सर, अगर वो उन लोगों ने सर अपने रेफरेंस से ले लिया, अगर चार्ट डेटम लेते तो पहले मतलब अब हम चार्ट डेटम पढ़ रहे होते। राइट बेटा, राइट। तो चार्ट डेटम से ही हाइट सारी की सारी चार्ट पे आ जाती। तो अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। लेट्स सी।
can also be obtained from a table of tides which is contained on the navigational charts. Let's insert these couple of terms we have just done in the same diagram that we are continuing with. Here is mean low water spring level. Here we have inserted is the mean high water spring level. Obviously, the height difference between the two is the spring range of tide. Mean high water spring also acts as the charted high water level, from where the height of objects which do not get submerged, like lighthouse, are measured. So charted height and elevations are measured with respect to mean high water spring. So ये है बेटा, the diagram is zoomed in now. ये same diagram है जो हमने पिछले पेज पे देखी थी. Is it making sense now? यस सर। Very good. अब बेटा इसी के साथ जो हमने अभी देखा, नेक्स्ट डेफिनेशन समझनी भी बहुत आसान है. लेट्स गो. Mean high water needs and mean low water needs. पहले मुझे आपको ये एक्सप्लेन कर देने दो कि ये कहाँ से आई है. मैंने आपको बेटा ये हाइट ऑफ टाइड्स दिखाई थी. इसमें हमने जहाँ पे भी रेंज ज़्यादा थी वहाँ पे 2 हाई वाटर को पिक कर लिया था और फिर ओवर द ईयर इनका मीन निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया मीन हाई वाटर स्प्रिंग. अगर यही 2 हाई वाटर मैक्सिमम रेंज की जगह पे मिनिमम रेंज पे निकाले जाएं, ये देखो ये मिनिमम रेंज है, यहाँ पे हम 2 हाई वाटर को ले लें, वैल्यूज उनकी नोट कर लें, फिर ये दूसरी मिनिमम रेंज यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 हाई वाटर को निकाल लें, वैल्यूज नोट कर लें और इनका मीन निकाल लें, तो क्या आ जाएगा बेटा? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया. कैन यू रिपीट सर? ओके 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 बेटा, हमने सबसे पहले तो टाइड की रेंजेस को नोट डाउन करना शुरू किया. ये हमने एक पर्टिकुलर जगह पे टाइड की हाइट को नोट किया. सबसे पहले ये टाइड की हाइट हमारे पास आ गई. लेट मी इरेज एवरीथिंग. ये हमने टाइड की हाइट को नोट कर लिया ऑन ऑल द डेज ऑफ द ईयर, जनवरी टू दिसंबर. फिर हमने क्या किया, फिर हमने हर एक दिन जो भी टाइड की रेंज आती है वो रेंज को निकालना शुरू किया. मतलब 5.7 माइनस 1.9, 5.6 माइनस 1.7 रेंज आती गई. आपने अपनी नोटबुक में ये सारी रेंजेस को लिख लिया. अप टू हियर ओके? यस सर. अब जब आपने उन रेंजेस को लिखा तो आपने फिर उनको अपनी नोटबुक में एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया. 1 जनवरी को रेंज आई थी इतनी, 2 जनवरी को रेंज आई इतनी, 3 जनवरी को इतनी इतनी इतनी. आप जब ये इनको प्लॉट करते चले जाओगे तो आप देखोगे ये जो रेंज है ये ऐसे वेरी करेगी. ओके सर. सो ये जो ग्राफ हमारे पास आ गया ये रेंजेस का है. रेंज ऑफ टाइड बढ़ती है, एक पीक पे पहुंचती है और फिर कम होती है. ओके ओके सर. जहां पे रेंज मैक्सिमम होती है इस लोकेशन में, देखो रेंज मैक्सिमम है. लेट अस से ये 1 मीटर की वैल्यू थी, ये 4 मीटर की वैल्यू थी. मैक्सिमम रेंज यहाँ पे आ रही है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड. और जहां पे रेंज मिनिमम होती है उसको बोलते हैं नीप टाइड. दिस इज नीप टाइड, दिस इज स्प्रिंग टाइड. अप टू हियर ओके? यस सर. अगर हम स्प्रिंग टाइड पे जो हमें रेंज मिल रही जो कि सबसे ज्यादा है, उस मैक्सिमम रेंज के पास वाले 2 हाई वाटर की वैल्यू को नोट कर लें. ओके और ओवर द ईयर इन वैल्यूज का मीन निकाल लें तो हमें मिल जाता है मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स. अब अगर मैं हाई वाटर स्प्रिंग से ना निकालूं, नीप वाली रेंज से निकालूं, यहाँ सबसे मिनिमम वाली रेंज के 2 हाई वाटर को मैंने नोट कर लिया. फिर सबसे मिनिमम वाली दूसरी रेंज यहाँ पे आई, यहाँ पे भी 2 हाई वाटर को नोट कर लिया और फिर इनका मीन निकाल लिया. तो क्या मिलेगा? मीन हाई वाटर नीप्स. ओके सर.
हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, आ गया सर, थैंक यू। Very good. So let's go back. Just give me. Mean high water needs and mean low water needs, they are defined exactly the same way as mean high and low water springs, excepting that instead of measuring them at the spring tide, these are measured at the neap tide. The height of mean high water needs is the average throughout the year of two successive high waters during those periods of 24 hours when the range of tide is at its least. So is this definition making sense now? यस सर। ये सर पूरे साल की बता Yes, रहे sir. हैं। राइट बेटा राइट। इसमें ना हर एक चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है। हाइट ऑफ द मीन हाई वाटर नीड्स इज नंबर 1 एवरेज, नंबर 2 थ्रू आउट द ईयर, तीसरी चीज 2 सक्सेसिव हाई वाटर। कौन से वाले हाई वाटर? ड्यूरिंग दोज पीरियड्स व्हेन द रेंज ऑफ टाइड इज एट इट्स लीस्ट। सबसे कम रेंज जिन दिनों पे मिले उन दिनों में जो भी 2 हाई वाटर सक्सेसिव हाई वाटर हमने नोट किए हैं उनका एवरेज निकाल लिया जाए पूरे साल के लिए तो मिलता है मीन हाई वाटर नीड्स। और अगर यही काम किया जाए लो वाटर के साथ तो मिलता है मीन लो वाटर नीड्स। ओके, okay, let's proceed ahead. You can see in this diagram, this level represents the mean high water needs. Likewise, the height of the mean low water needs is the average height obtained by 2 successive low waters during those periods of 24 hours when the range of tide is at its least. And this level in the diagram represents mean low water need. Difference in the height between these two represents the neap range of tide, and the height of mean high water neap or mean low water neap can be obtained either from tide tables or from the table of levels given on the navigational chart. Now we insert mean high water needs and mean low water needs in this diagram. Here is mean low water needs level. This is mean high water needs level. This represents then the neap range of tide. You can see here very clearly that the neap range is much lesser than the spring range. Mean sea level. Okay, so is it clear beta up to here? हाँ सर, मतलब कि हाई और लो दोनों का नीप निकाल के उनका रेंज निकाल लिया, वही नीप रेंज ऑफ टाइड होगा। Right, right, right.